السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سننے والے حضرات، ابھی میں آپ کو سنانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، دلائل کے انباروں سے آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ مفت کے مفتی ہیں جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھنا جائز ہے یا نہیں، جو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے، اس طریقے سے مسائل بتائے۔ حالانکہ بات یہ ہے، میں جلدی سے اپنی بات کو کم وقت میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو ابھی یہ جو مفت کے مفتی ہیں، ان کا نام ہے غلام ربانی۔ انہوں نے اپنی چینل پر سید امین القادری صاحب کی دفاع میں ایک ویڈیو بنا دیا ہے۔ آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو جو سید امین القادری صاحب نے کہی تھی کہ مشرکین کے تہوار کے نسبت سے مٹھائی خریدنا کفر ہے، اس بات کی تائید کی ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں دی ہے پورے ویڈیو میں۔ میں آپ کو ان کے پورے ویڈیو کی جو لنک ہے، ان کے پورے ویڈیو جو چینل پہ ان کے موجود ہے، اس ویڈیو کا پورا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان کے ویڈیو کا جواب دینے آیا ہوں اور آپ کے سامنے واضح کر کے اور دلیل دے کے بتاؤں گا کہ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھنا جائز نہیں ہے، ایسے مفتیوں سے مسائل پوچھنا جائز نہیں ہے۔ میں باقاعدہ مفتیان کرام کے بھی فتوے دکھاؤں گا اور اپنے امام اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ دکھاؤں گا، انشاءاللہ سن کے جائیے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے خلاف جو ویڈیو بنایا، سب سے پہلے انہوں نے میرے خلاف یہ بیان کیا، یہ بتایا لوگوں کو کہ میرا تلفظ صحیح نہیں ہے، میں اردو صحیح سے نہیں بول پاتا۔ ہاں، میں عالم نہیں ہوں، تو میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں کبھی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگاتا، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ اس بات کو نوٹ کریے، غور کریے، میں اپنی طرف سے کبھی کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، میں کبھی کسی کی طرف کوئی حکم نہیں لگاتا۔ میں اپنے اکابرین کے فتوے دکھاتا ہوں، میرے اکابرین نے جو کہا ہے میں اسی کو دکھاتا ہوں۔ آپ کو نہ یقین ہو تو میرے چینل پر جا کر آپ سارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اکابرین کے فتووں سے میں کسی کا بھی رد کرتا ہوں تو رد کرتا ہوں، ورنہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، انہوں نے پہلے تو میری اردو پہ گرفت کی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میری اردو صحیح نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میری اردو صحیح نہیں ہے، میری اردو تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں غلط مسائل نہیں لوگوں کو بتاتا، غلط عقیدہ نہیں لوگوں کو بتاتا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، تو اس سے بدرجہ اولا میں آپ سے بہتر ہوا۔ چلو میری زبان ٹھیک نہیں ہے، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، میں موزی کو موزی کہہ دیتا ہوں، اوکے کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی میرے محترم، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں بہت غلطی کرتا ہوں، میری زبان میں کبھی شین کو سین کہہ دیتا ہوں، کبھی زے کو جے کہہ دیتا ہوں، کبھی کچھ بھی کہہ دیتا ہوں، فے کو پھے کہہ دیتا ہوں، غلط، اوکے معافی مانگتا ہوں میرے محترم۔ لیکن آپ کی طرح نہیں ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کروں، لوگوں کو غلط مسائل بتاؤں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، اپنے اکابرین کے مفتیان کرام کے فتوے دکھاتا ہوں، اور یہی آج بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سید امین القادری صاحب کی دفاع میں یہ ویڈیو بنائی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، انہوں نے جو فالتو میں باتیں کی ہے تو کی ہے، وہ میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو جہاں سے انہوں نے دلیل دینا شروع کیا ہے، میں وہاں سے آپ کو سنا کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غور کریں بات کیا ہے اور یہ کس چیز پہ، بات کیا ہے اور یہ دلیل کس چیز پہ دے رہے ہیں، اس پر غور کریے۔ بات یہ ہے کہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار کے نسبت سے، ان کے تہوار کی نسبت سے مٹھائی خریدنا کفر ہے، یعنی جو خریدے گا ان کی تہوار کی نسبت سے مٹھائی، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر میں ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں اور ہم الہ آباد کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے یہاں کیا ہے نا، ہندوؤں کے تہوار پر جیسے ہولی دیوالی آتی ہے تو کچھ جو ہمارے یہاں بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ ہندوؤں کے تہوار کی نسبت سے نا، وہ اپنی دکانوں میں چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، سستا کر کے بیچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے، لوگ زیادہ سامان خرید لیتے ہیں، سستا دیکھتے ہیں تو خرید لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمان بھی خریدتے ہیں، ہندو بھی خرید لیتے ہیں سامان وغیرہ، کوئی بھی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی سائیکل خرید رہا ہے، کوئی برتن خرید رہا ہے، کچھ بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ سستا ہوتا ہے سامان، اور وہ جو سستا ہوتا ہے وہ ان کے تہوار کے نسبت سے ہوتا ہے، دیوالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ہیں، انہوں نے دیوالی کی نسبت سے جو سستا ہوا تھا سامان، اس نسبت سے انہوں نے جا کے سائیکل خرید لی اپنی بیٹی کے لیے کہ سستا ہوا ہے سامان، میں اپنی بیٹی کے لیے سائیکل خرید لوں۔ تو بتائیے کیا وہ کافر ہو گئے؟ حالانکہ انہوں نے
हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से वो साइकिल खरीदी थी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के त्यौहार पे वो सस्ता हुआ था। उन पर क्या हुक्म लगेगा? एक चीज़ और इसी में हमारे यहाँ मेला लगता है, हिंदुओं के त्यौहार पर मेला लगता है। जैसे ये हमारे यहाँ दशहरा वगैरह होती है ना, तो दशहरा वगैरह पे मेले लगते हैं, उनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ मेले लगते हैं। तो हमारे मुसलमान कसीर तादाद में जाके सामान खरीदते हैं उनके मेले में जाके। कोई मिठाई खरीद रहा होता है, कोई जलेबी खरीद रहा होता है, कोई चाट पकौड़ी फुल्की सब खरीद रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो ये जो मेला लगा है हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से लगा है, और जो इस मेले में खरीद रहा है वो हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से ही खरीद रहा है। समझ रहे हैं? हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से खरीद रहा है, क्योंकि उस त्यौहार की निस्बत से लगा हुआ है मेला। समझ रहे हैं? तो अब क्या वो सब काफिर हो गए कि नहीं? आप इस पर फतवा दीजिए। आपने कहा ना हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से काफिर हो जाएंगे, क्या ये जो मेले में जाके खरीदते हैं, हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से सामान खरीदते हैं, ये सब काफिर हो गए? फतवा दीजिए आप। अगर काफिर हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पूरा गांव काफिर हो चुका है। मेरे पूरे गांव में हर घर से लोग जाते हैं उस मेले में और सामान खरीदते हैं। कोई जलेबी खरीद के लाता है, कोई मिठाई खरीद के लाता है। तो हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीद लिया, कुफ्र हो गया। अभी आपने एक बात कही थी कि खुशी में, अभी बात घुमा दिया था ना आपने, अभी वो भी मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप इस पर फतवा दीजिए, क्या वो सब काफिर हो गए? अब आइए मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, क्या बात को घुमा फिरा के कहाँ का कहाँ लाया है। और ये मुफ्ती हैं, ठीक है? आइए देखिए, सुनिए इनकी इल्मी मेयार देखिए। ये मुफ्ती हैं, समझ रहे हैं? सुनिए। रिजवान के हवाले से, किताब के हवाले से, फतवा रज़विया के हवाले से आपके सामने एक हवाला रखता हूं, आप उसको पढ़िए और देखिए। फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 14 सफ़ा नंबर 681 पर हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, इन्हीं के त्यौहार के मुताल्लिक सवाल किया गया। सवाल है कि होली दिवाली हिंदुओं का पर्व है या नहीं? अगर है तो किस बिना पर जारी हुआ है? इसकी इब्तिदा कैसे हुई? मुसलमान अगर इसको करें तो क्या उन पर कुफ्र आयद होगा? जवाब, होली दिवाली हिंदुओं के शैतानी त्यौहार हैं। जब ईरान खिलाफत फारूकी में फतह हुआ, भागे हुए आतिश परस्त कुछ हिंदुस्तान में आए। उनके यहाँ 2 ईदें थी, एक तो नौरोज के तहवील हमल है और मेहरगान के तहवील मीज़ान। वो ईदें और उनमें आग की परस्तिश हिंदुओं ने उनसे सीखी, और ये चांद सूरज दोनों को पूजते हैं। लिहाजा इनके वक्तों में ये तरमीम के मैघ संक्रांत की पूर्णिमाशी में होली और तिला संक्रांत की अमावस में दिवाली, ये सब रसूम कुफार हैं। मुसलमानों को इनमें शिरकत हराम, और अगर पसंद करें तो सरीह कुफ्र। क्या पसंद करें तो सरीह कुफ्र, इस पर गौर करना। अगर पसंद करें तो सरीह कुफ्र। ये गमज़ल उयून के हवाले से हुजूर आला हज़रत ने बयान किया है। जैसा कि गमज़ल उयून की इबारत भी आपके सामने है कि हमारे मशाइख का इत्तिफाक है कि अगर किसी ने कुफार के किसी मामले को अच्छा कहा तो वो काफिर हो जाएगा। मैं दूसरा हवाला आपके सामने रखता हूँ, फतवा शारी। मैं अभी सुनाता हूँ दूसरा। इसमें यह साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार को, यानी खुशी जानना, खुशी इजहार करना, हिंदुओं के त्यौहार पर राज़ी होना, ये कुफ्र है। हिंदुओं के त्यौहार में शिरकत करना ये हराम है, फरमा रहे हैं। इससे साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। अभी मैं आपको अकाबरीन के फतवे दिखाऊंगा, वॉइस में बाकायदा मैंने जो उनसे सवाल किए हैं उनके चैनलों पर भी मौजूद हैं। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। आपको बताइए, आपको ये साबित हुआ? फतवा रज़विया से ये साबित कर रहे हैं, साबित हुआ? नहीं साबित हुआ। आइए दूसरा इनका देखिए। और मैंने ये फतवा जो ये सुना रहे हैं, इसको मैंने खुद अपने वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, ये साबित मैंने जिससे साबित किया है कि ये साबित नहीं होता कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, ये वही हवाला ला रहे हैं ये साबित करने के लिए कि नहीं हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। देखिए दलील। मैं दूसरा हवाला आपके सामने रखता हूँ, फतवा शारी बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 566 का, जो कि होली दिवाली के मुताल्लिक ही सवाल किया गया। तो अल्लामा शारी बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि इन मुशरिकाना मजहबी त्योहारों पर हिंदुओं को मुबारकबाद देना अशद हराम। जो मुसलमान ऐसा करते हैं उन पर तौबा व तस्दीद ईमान और निकाह लाजिम है, और उन पर पैसा लेना भी हराम व गुनाह। आलमगीरी के हवाले से इन्होंने बयान किया। अब तीसरा हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। इस हवाले से भी ये साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। मेरे मोहतरम, आप
समझे इन बातों को, देखें किस तरीके से ये लोग गुमराह करते हैं लोगों को, बात को किस तरीके से कहाँ घुमा के रख देते हैं। सवाल क्या है, जवाब क्या दिया जा रहा है। अगर आपको ना समझ में आए मेरे मोहतरम, मेरे वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिएगा जी, समझिए। दो दलील ये दे चुके, तीसरी दलील सुनिए इनकी। इससे भी क्या ये साबित हो रहा है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है? सुनिए। आपके सामने रखता हूँ अल मलफूज शरीफ का, जो कि सफ़ा नंबर 163 पर है, हिस्सा अव्वल में। अर्ज किया गया, काफिर जो होली दिवाली में मिठाई वगैरह बांटते हैं, मुसलमानों को लेना जायज है या नहीं? इरशाद फरमाया, उस रोज ना ले, हाँ अगर दूसरे रोज दे तो ले ले, न ये समझकर कि उन खुबाता के त्योहार की मिठाई है, बल्कि माले मूजी नसीबे गाजी समझे। यानी उनके त्योहार की मिठाई ना समझे, बल्कि माले मूजी नसीबे गाजी समझ करके ले ले। ठीक है, ये तो हवाला हुआ अल मलफूज शरीफ का। क्या इससे भी ये साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है? आला हजरत फरमा रहे हैं कि हिंदुओं के यहाँ जो उनके त्यौहार में जो चढ़ावा होता है, वो अगर प्रसाद दें तो उसे क्या करें? तो फरमाते हैं कि जिस दिन दे वो उस दिन ना ले, जिस दिन त्यौहार हो उस दिन ना ले, दूसरे दिन दे तो ले ले। समझ रहे हैं? माले मूजी नसीब गाजी समझ कर ले लें। समझ रहे हैं? ये आला हजरत फरमा रहे। क्या इससे साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है? देखिए, आप समझें बात को मेरे मोहतरम, मेरे भाई। मैं समझाना चाहता हूं कि ये लोग कितने गुमराह करते हैं लोगों को। ये मुफ्ती हैं, कितना गुमराह करते हैं। बात कुछ है, घुमा के दलील दे रहे हैं फालतू का, जो वो उस बात से ताल्लुक ही नहीं रखती, उस बात की दलील दे रहे हैं। अब आइए इनकी चौथी दलील सुन लीजिए। गाजी समझ करके ले ले। ठीक है, ये तो हवाला हुआ अल मलफूज शरीफ का। चौथा हवाला आपके सामने रखता हूं, जो कि फतवा बरेली शरीफ का है, जो आपके स्क्रीन पर मौजूद है, सफ़ा नंबर 346 आप पढ़ सकते हैं, जो कि होली दिवाली के साथ ताल्लुक से है। और इसमें भी गमज़ और उयून के हवाले से, जो कि फतवा रज़विया शरीफ में जो लिखा था, वैसे ही इसमें भी लिखा है कि जिसने काफिरों के त्योहार को अच्छा समझा बिल इत्तिफाक इंदर मशाइख, वो जो है काफिर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने हवाले रखी। अब आपके सामने फतावा बरेली शरीफ से ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा जाना तो ये कुफ्र है। हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा जानने की बात हो रही है, हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदने को कुफ्र नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आप समझे। अभी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपको नहीं समझ में आता इंशाल्लाह भाई मैं अपने अकाबरीन के भी फतवे दिखाऊंगा। ये इन्होंने 4 दलील दे दिया, बस ये दलील बस 4 ही दलील है। ठीक है, इससे कहीं साबित नहीं होता भैया कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। लोगों को गुमराह करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती? मुफ्ती हो, इस तरीके से मुफ्ती होता है? अभी आइए मैं आपको फतावा रज़विया दिखाता हूँ। कहाँ हो भैया? फतावा रज़विया आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, फतावा रज़विया देखिए, फतावा रज़विया जिल्द 9, समझ रहे हैं? जिल्द 9 और सफ़ा नंबर 6, और ये रज़ा एकेडमी का कदीम दौर का वो वाला है। समझ रहे हैं? ये स्कैन जो आपके सामने दिख रही है, मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर उनसे पूछा गया है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हिंदू जो अपने माबूदान बातिल को ज़बीहा के सिवा और किस्म ताआम व शीरनी वगैरह चढ़ाते और उसे भोग या प्रसाद नाम रखते हैं, उसका खाना शरअन हलाल है या नहीं? और हलाल पूछा गया है, हलाल है या नहीं? जवाब देते हैं हलाल है, मगर इससे एहतराज लाजिम है। मुसलमानों को एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। समझ रहे हैं? ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। अब मैं इस फतवे से उनको आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, तो हिंदुओं के दिए हुए शिरनी, जो वो जिसको प्रसाद कहते हैं, वो तो बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए। समझ रहे हैं? बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए। अगर आप अपने हलाल पैसे की हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीद रहे हैं, अगर ये कुफ्र है, तो हिंदू जो अपने त्यौहार के निस्बत से आपको दे रहे हैं, आप खा रहे हैं, ये तो बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब आइए मैं आपको उलमाए कराम, अपने ज़िम्मेदार, अपने बरेलवी मसलक के ज़िम्मेदार उलमाए कराम का फतवा आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं अपने इलाहाबाद के शहर काजी, जिनको शफ़ीक मिल्लत कहा जाता है, जिनका नाम मुफ्ती शफ़ीक अहमद शरीफ़ी है, उनसे मैंने सवाल किया था। उनके चैनल, यूट्यूब चैनल जो उनका, यानी उनके चैनल पर जो उनके फतावे जो अपलोड होते हैं, उस पर ये मेरा वीडियो वहाँ पर मौजूद है। मैंने उनसे सवाल किया था एक चीज़ पे, और उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया है। मैं आपके सामने इसका बाकायदा आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। ठीक है,
ایک صاحب ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے ایک بریلوی خطیب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ جن دنوں مشرکوں کا تہوار ہو اور وہ ان دنوں مٹھائیاں خریدتے ہوں اور ان دنوں ان کے تہوار کی نسبت سے صرف مٹھائی خریدنا یہ بھی کفر ہے، جیسے کہ عام طور پر ہندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کر تقسیم کرتے ہیں، اس دن اس تہوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہے، ایسا مسئلہ بیان کرنا کیسا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو بیان کرنے والے پر کیا حکم شرع عائد ہوتے ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ بیان کیا ہے خطیب نے اور تحقیق آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ مصیبت آپ کو خطیب سے تحقیق کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ میری نظر میں ایسا کوئی جزیہ اعلیٰ حضرت کا موجود نہیں ہے جس میں اس کو کفر کہا گیا ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی آپ نے سنا، یہ شفیق ملت ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب کا آپ کا کال سناتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ اب آئیے آپ سنیے ان کی زبان سے۔ یہ میرا سوال ہے، میں نے سوال کیا تھا، پہلے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو جواب سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب سے ایک مسئلہ عرض ہے کہ وہ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے ایک خطیب صاحب یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار کے جس دن ہندوؤں کا تہوار ہو اور اس دن ہندوؤں کے تہوار کے نسبت سے مٹھائی خریدنا، صرف مٹھائی خریدنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو میرے محترم مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب سے دریافت طلب ہے کہ وہ اس پر رہنمائی فرمائیں، کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار کی نسبت سے مٹھائی خریدنا بھی کفر ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، وقت کا المیہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کھوٹے سکے کی سند جو ہے فتاوی رضویہ سے لیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کو سمجھنے والے، پڑھنے والے اگر 100% ہیں، 100% تو خیر پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، ہماری جماعت یعنی اہل سنت میں 25-30% لوگ میرے اندازے کے مطابق پڑھتے ہیں، ان میں صحیح سمجھنے والے 1-2% ہیں، باقی تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ فتاوی رضویہ میں کیا عبارت ہے، اس کا مقبل مابعد کیا ہے، قرائن کیا ہیں، مقتضی حال کیا ہے، عبارت کس بات پہ دال ہے اور کن حالات کے تناظر میں یہ عبارت پیش کی گئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور سب فتاوی رضویہ کا نام لیتا ہے اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں نادان کہ اس طرح سے تم اپنی بات کو تو وزنی بنا لیتے ہو لیکن فتاوی رضویہ کا وزن گھٹا دیتے ہو۔ اس طرح کی باتیں فتاوی رضویہ میں کہیں نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ ہاں، جس فرق کے ساتھ فتاوی رضویہ میں یہ بات ہے موجود، اس فرق کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور بغیر فرق سمجھے کچھ کا کچھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے فتاوی رضویہ میں، جو شخص کہہ رہا ہے، جو آپ نے اپنی زبان سے سنا ہے، ویسا نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اس عبارت کا مفہوم، معنی، مطلب الگ ہے، میری نظر سے بھی وہ عبارت گزری ہے، لیکن اس عبارت کا اس مطلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا کہوں محترم، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہر کس و ناقص فتاوی رضویہ کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے نام کا غلط استعمال کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کے نام کا غلط استعمال کرتا ہے، مسلک کو بدنام کرتا ہے، فتاوی رضویہ کو بدنام کرتا ہے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شعور دے، سمجھ دے، تفقہ دے۔ بغیر تفقہ کے مفتی بنے پھرتے ہیں بہت زیادہ لوگ، بلا ہیں یہ لوگ بلا ہیں، مصیبت ہیں قوم کے لیے۔
इन लोगों की बातों में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी आपने सुना, ये मुफ्ती आज़म नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहब थे। ये नेपाल के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म हैं। ये मुफ्ती आज़म यानी नेपाल में जितने मुफ्ती हैं सारे मुफ्तियों के सरदार हैं, ये मुफ्ती आज़म हैं। ये लोग फरमा रहे हैं कि ऐसा आला हज़रत ने कहीं नहीं लिखा है। जो ऐसा बयान कर रहे हैं वो लोग बला हैं, दीन में वो बला हैं। समझ रहे हैं। तो मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहब, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और ये बहुत अच्छे आलिम है। आपको आज बताना चाहता हूँ, आप इनकी बातों को सुना करें। ये अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी नज़र में इनकी शान बहुत बड़ी है। ये इतनी अच्छे से बात करते हैं। मैं जब भी इनसे बात करता हूँ, मैं बहुत से आलिमों से बात किया, लेकिन जब इनसे बात करता हूँ तो दिल बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी झुंझलाते नहीं। ये बड़ी डिटेल में बताते हैं और बड़ी मोहब्बत से बताते हैं, कभी झुंझलाते नहीं किसी बात पे कि जैसे झुंझला के कम बात करना, हाँ, या बात का कम जवाब देना, नहीं। पूरी अच्छी तरीके से वजाहत करके बताते हैं। पता चलता है कि ये अल्लाह का बंदा दीन का काम करना चाहता है, ये बात को समझाता है, खोल के बताता है। तो ये मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहब ने बाकायदा मुफ्ती आज़म नेपाल ने बाकायदा ये बता दिया कि ऐसा आला हज़रत ने कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन ये है क्या नाम है इनका, मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब दलाइल दे रहे हैं कि आला हज़रत ने ऐसा लिखा है और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐसा लिखा है, और फतवा भी ये दे रहे हैं कि बिल्कुल उनके त्यौहार के निस्बत से अगर मिठाई ख़रीदेगा तो काफिर हो जाएगा। मैं उनके वीडियो को ज़्यादा आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आइए मुफ्ती उत्तराखंड, मुफ्ती आज़म उत्तराखंड मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे कांटेक्ट में रहता हूँ, पूछता रहता हूँ मसाइल। तो मुफ्ती आज़म उत्तराखंड मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहब से मैंने ये सवाल किया, उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया है। पहले सवाल सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती आज़म उत्तराखंड मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहब से एक मसला अर्ज़ है कि वो इस मसले में रहनुमाई फरमाएं कि अहले सुन्नत व जमात के स्टेज से एक ख़तीब साहब ये एक मसला बयान कर रहे थे कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत ने ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई ख़रीदना भी कुफ्र है। तो मेरे मोहतरम मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहब से ये दरियाफ़्त तलब है कि वो इस मसले में रहनुमाई फरमाएं, क्या इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने ये ऐसा कोई मसला बयान किया है? क्या इस पर यह हुक्म लगाया है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई ख़रीदना कुफ्र है? इस पर रहनुमाई फरमाएँ। जी, अब आप देख रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इस पर मैंने उनसे पूछा था तो फिर मैंने कहा था जी मेरे मोहतरम, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। फिर कुछ देर के बाद जवाब नहीं आया तो मैंने फिर उनको ये इत्तला दी कि मैंने फिर लिख के भेजा कि मेरे मोहतरम मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो उन्होंने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत खुद से सरा के फतावे में ऐसी कोई इबारत फ़कीर को नज़र नहीं आई, वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। समझ रहे हैं? ये उन्होंने जवाब दिया। यानी मुफ्ती आज़म उत्तराखंड मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहब के नज़र में भी ये ऐसा कोई फतवा मौजूद नहीं है, ऐसा आला हज़रत ने कहीं नहीं लिखा है। तो मैंने दो मुफ्ती आज़मों का आपको फतवा दिखाया, मुफ्ती आज़म उत्तराखंड मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी साहब, मुफ्ती आज़म नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहब, और मैंने अपने शहर काजी इलाहाबाद शफ़ीक़ मिल्लत मुफ्ती शफ़ीक अहमद शरीफ़ी साहब, इन तीनों ज़िम्मेदार उलमा का जो बरेली के असल ज़िम्मेदार उलमा में शुमार होते हैं, मैंने इनके आपके सामने दिखा दिया फतवा। ये कहते हैं कि ऐसा आला हज़रत ने कहीं नहीं लिखा है, ये मेरी नज़र में नहीं लिखा है। मुफ्ती आज़म नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहब ने तो कहा कि ये लोग बिल्कुल दीन में तो ये लोग बिल्कुल, आपने वो जुमला सुना, मैं ज़ुबान पे नहीं लाना चाहता, हालांकि वो बड़े हैं, वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? तो आपने सुना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग समझ गए होंगे, इतने में मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं, मैंने उनसे ये बात कही थी कि आप भी ये जवाब दे दीजिए। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इतना काफ़ी है। समझ रहे हैं? इतना काफ़ी, आप इतना अगर हवाला दिखा देंगे तो समझने वाला तो बाकायदा समझ लेगा। समझ रहे हैं? अब भी अगर किसी को शक हो कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो लाएं मेरे मोहतरम
आला हजरत ने ऐसा कहाँ लिखा है हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है? किसी मुफ्ती से जाके आप पूछें। अगर आप कहेंगे हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, तो हमारे यहाँ देहात में जितने भी लोग हैं वो सब काफिर हो जाएंगे। वो लोग हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदते हैं, मैं शाहिद हूँ इसका। लगाएं फतवा उन पर, समझ रहे हैं? लगाएं फतवा उनके ऊपर। और इन्होंने बात क्या घुमा दिया, मैं इस पर यानी इख्तिताम करूंगा। इन्होंने बात घुमा दिया, बात घुमा के इन लोगों को बात घुमाने का बहुत अच्छा तजुर्बा होता है। बात कुछ का कुछ कर दिए। पहले बात अभी मैंने दिखाया, अब दूसरी बात आपको बताता हूं कि यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। हाँ, ये चीज़ सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान की थी, तो इन्होंने इस पर दलालत की कि हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा कहना ये कुफ्र है, और फिर फतवा दिखाया कि हिंदुओं के त्यौहार में शिरकत करना हराम है। ये सब मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मेरे भाई। गुलाम रब्बानी साहब, मैं अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी? क्यों नहीं देखी आपने वीडियो में आ गए, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी? जो आप फतवा दिखा रहे हैं, मैंने फतवा दिखाया है वहाँ पर, ठीक है। अब आखिरी बात, इन्होंने एक बात कही थी कि मैंने दजल से फरेब से काम लिया है ना। क्या कहा था कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा है कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, और मैंने निस्बत का लफ्ज़ हटा दिया। तो आपको इसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए। मैंने एक बार गलती से भूल कर ये कह दिया था कि हिंदुओं के त्यौहार में जो मिठाई खरीदने कुफ्र है, मिठाई खरीदते हैं कुफ्र है, ये बात कह दी थी। लेकिन मैंने इसी पर दूसरा वीडियो बनाया था, आपको ये थंबनेल दिख रहा है, ये इस पर मैंने 6 वीडियो को एक में करके उन सब का जवाब दिया है, समझ रहे हैं? उन सब का उसको एक कर किया है। तो इसमें मैंने जो वीडियो बनाई है उन पर बाकायदा कही है ये बात कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र नहीं है। इसमें मैंने साबित किया है, फतावे दिखाए हैं। तो इनसे पूछा जाए, जितने मुफ्तियाने कराम हैं, मैं तो अब कुछ नहीं हूँ, आप लोग इनकी गिरफ्त करें ना, आप मुफ्ती हैं मेरे मोहतरम, आप इनकी गिरफ्त करें। इनके चैनल पर नंबर मौजूद है, इनसे पूछें कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कब कुफ्र है। पूछें, अब मुफ्ती बहुत हैं मुझे सुनने वाले, ये इनका नंबर इनके चैनल पे है। मैं इनका नंबर आम नहीं कर रहा हूँ, उनके चैनल पे खुद इन्होंने दिया हुआ है। चैनल इनके नंबर लें और इनसे पूछें कि आला हजरत ने गलत मसला बताया है। मेरे मोहतरम, मेरे मुफ्तियाने कराम, मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछिए, ये गलत मसला लोगों को बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मसला के आला हजरत को बदनाम कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि आला हजरत ने कहाँ पे कुफ्र कहा है। ये गलत अपनी तरफ से मसला बयान कर रहे हैं, आखिर कर रहे हैं, इनसे पूछिए। और ये एक चीज़ बात ये कह रहे हैं, ये गुलाम रब्बानी साहब, आप ये कह रहे हैं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप बनाइए दूसरा भी वीडियो, मैं देखता हूँ आप कहाँ तक जाते हैं। तो बहरहाल ये साबित हुआ कहीं से कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। यानी जब हिंदुओं के त्यौहार में शिरकत करना हराम है, कुफ्र नहीं है, हराम है, तो हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र कैसे हो गया? इसको समझने की ज़रूरत है। और अभी मैंने आपको बरेली मसलक के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान मुफ्तियाने कराम के फतवे मैंने आपको दिखाए, उन्होंने कहा ऐसा आला हज़रत ने नहीं लिखा है, लिहाजा आप फैसला कर लें। ठीक है, मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।